Good morning, students. In the last class, a very important bit we have studied. Addition of matrices, operations on matrices we have studied in the last class. And the first one we have seen addition of matrices. Second one we have seen scalar multiple of a matrix. Addition of matrices. Two matrices are said to be added or subtracted if their orders are same. If their orders are not same, then we cannot add them, we cannot subtract them. Addition of two matrices is possible when the orders of the matrices are same. Like, I'll give you one example here before going to start with this topic. 2, 3, 1, 2. Suppose B is the matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, how many rows are here? 2. How many columns are here? 2. Now, how many rows are here? 2. How many columns are here? 3. So, order of this matrix is 2 cross 2, whereas order of this matrix is 2 cross 3. So, matrix addition and matrix subtraction is not possible here. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं। और अगर हम लेते हैं मैट्रिक्स X सपोज टू बी 1 2 3 4 5 6 और मैट्रिक्स Y लेते हैं हम सपोज 1 2 3 4 5 6. Now check the order. How many rows are here? 3. First row, second row, third row. How many columns are here? 2. Now how many rows are here? 3. How many columns are here? Now check the order. What is the order of this matrix? 3 cross 3. What is the order of the matrix? 3 cross 3. So matrix addition is possible here. It is not possible here because orders are different. Like that, matrix subtraction is also possible here because their orders are same. If the orders are same, then the matrix can be added and matrix can be subtracted. Now, come to the most important bit of this topic. Sorry, addition of matrix we have seen is scalar multiple also. What is scalar multiple of a matrix? Suppose the value, suppose K is the scalar multiple 3 and there is a matrix X A, B, C, D, E, F. Suppose this is the matrix. Now, K get multiplied with X. What is the scalar multiple? Scalar multiple is 3 and the matrix is X. Then this scalar should get multiplied with all the elements. ये जो स्केलर क्वांटिटी है यहाँ के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा 3 into A, 3 into B, 3 into C, 3 into D, 3 into E, 3 into F. ये होता है हमारा स्केलर मल्टीपल जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। एक और एग्जांपल लेंगे हम, सपोज K वैल्यू इज 5 एंड सपोज मैट्रिक्स A इज 1 minus 1 6 2 4 5. अब हमारा जो स्केलर मल्टीपल है वो K है जिसकी वैल्यू है 5. नाउ मैट्रिक्स A है 1 5 into 1 5 5 into minus 1 minus 5 5 into 6 5 into 2 5 into 4 5 into 5. ये होता है स्केलर मल्टीपल, मैट्रिक्स एडिशन स्केलर मल्टीपल. Okay, now matrix multiplication. The most important in matrix multiplication, suppose A and B are any two matrices, then we have to write first A, then we have to write B. If we are finding A into B, if we are multiplying first A, then B, then how we have to write AB. If we want to multiply BA, then first we have to write B, then we have to write A. It is very important. It is very important property of operations on matrices. Matrix multiplication
of A and B is defined if number of columns in A refers to the first matrix, equal to the number of rows in second matrix. Now I'll give you one example. Suppose there is a matrix A, 1 2 3 4 5 6. Suppose there is one more matrix B, 1 7 2 4 5 6. Now we need to find A B value. What we are finding? Matrix multiplication we are finding. Matrix multiplication A B. We are finding A B. If we are finding B A, then first we have to write B, then we have to write A. But we are finding first A B. Then see here, it's a very beautiful concept. Now first we will write A value 1 2 3 4 5 6. Now B value, we will write B value 1 7 2 4 5 6. Now what is the basic condition? Number of columns in A should be equal to number of rows in B. Now how many columns are here? Check. In first matrix, how many columns are here? First column, second column. So there are 2 columns in the first matrix. Now check rows in second matrix. How many rows are here? First row, second row. पहली मैट्रिक्स में कॉलम चेक करना है और दूसरी मैट्रिक्स में रोज चेक करना है। पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है। अब उतने ही रो सेकंड मैट्रिक्स में चाहिए। कितने रो हैं सेकंड मैट्रिक्स में? फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आई विल रिपीट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स में क्या चेक करना है हमको? कॉलम। और दूसरी मैट्रिक्स में क्या चेक करना है हमको? रोज। अगर हम ए बी मालूम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सी हियर हाउ टू मल्टीप्लाई। इट्स अ वेरी गुड कांसेप्ट। रो गेट मल्टीप्लाई विद कॉलम। जब हम चेक करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले जब हम चेक करते हैं तो कॉलम को रो से चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं उतने ही रो सेकंड मैट्रिक्स में आने चाहिए। तो वो कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू कॉलम। नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रो हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नाउ रो किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉलम। Very carefully, it's a very important concept of this chapter. Very important. Matrix multiplication is very important. Matrix multiplication की जो basic condition है वो condition ये है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स में यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स। नाउ दूसरी मैट्रिक्स में रोज कितने हैं? 2 1 2। कंडीशन ओके। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। नाउ फर्स्ट रो गेट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। चेक 1 into 1, first element first. Now 2 into 4, first row first column, first row first column। रो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? कॉलम से। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब तक पूरे कॉलम कंप्लीट नहीं होंगे हम नीचे नहीं जा सकते। चेक हियर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज 1 into 7। नाउ सेकंड एलिमेंट सेकंड 2 into 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 2। नाउ 2 into 6।
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे कॉलम कंप्लीट हो गए, सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो, यहाँ पे सेकंड रो क्या है 3 4, सेम मेथड। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। नाउ 4 into 4, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाएंगे, 3 into 7। नाउ 4 into 5। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 3 into 2, 4 into 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड रो पे आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कॉलम कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 into 1 plus 6 into 4, 5 into 7 plus 6 into 5, 5 into 2 plus 6 into 6। अब जाके कंप्लीट हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 1 into 1 plus 2 into 4, 1 into 7 plus 2 into 5, 1 into 2 plus 2 into 6, 3 into 1 plus 4 into 4, 3 into 7 plus 4 into 5, 3 2s are 6, 4 6s are 24, 5 into 1 plus 6 4s are 24, 5 into 7 plus 6 into 5, 5 into 2 plus 6 into 6, 36. Now 9, 17, 2 plus 12, 14, 19, 41, 30, now 29, now 65, 36 plus 10, 46. This is our final answer. A into B, A into B। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी हम कर रहे हैं तो पहले क्या चेक करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर है, वो दोनों सेम होना चाहिए। एक बार सेम आ गया, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, और जब स्टार्ट करेंगे तो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम मालूम करेंगे B into A। ठीक है, तो पहले अब हम लिखेंगे पहले B। यहाँ पे हमने पहले मालूम किया A into B, तो पहले A लिखे और बाद में हम लिखे B। लेकिन अब हम मालूम कर रहे हैं B into A, तो पहले B लिखेंगे हम। 1 7 2 4 5 6। Now A value 1 2 3 4 5 6। Now मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, A into B भी हो सकता है, B into A भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से अगर दोनों पूछता है तो दोनों मालूम करेंगे, या सिर्फ A भी पूछता है तो A भी मालूम करेंगे। नाउ इट इज जस्ट जनरल एग्जांपल, B into A, कंडीशन वही है फिर से, B A मालूम करना है तो पहले B लिख दिए बाद में A लिख दिए। जैसा पहले हम मालूम किए थे A B, तो पहले A लिख दिए बाद में B। नाउ B into A, कंडीशन वही है, पहली मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं और दूसरी मैट्रिक्स में रोज कितने हैं। पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं और दूसरी मैट्रिक्स में रोज कितने हैं। पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 कॉलम। अब उतने ही रो सेकंड मैट्रिक्स में चाहिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नाउ सी हियर इट्स वेरी सिंपल, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। Now see here, it's very simple. Video is on.
Let me proceed. रो इससे मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई की। जो चेक करते हैं वो एक डिफरेंट चीज है और जो मल्टीप्लाई करते हैं वो एक अलग चीज है। हम चेक करते हैं कॉलम, इस तरफ कॉलम चेक करते हैं फर्स्ट में और सेकंड में रो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कॉलम। अब 1 7 2 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 into 1, सेकंड 7 into 3, थर्ड 2 into 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 plus 7 into 4 plus 2 into 6। ऑब्जर्व केयरफुली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ। वैसे ही फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ, कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 4 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 प्लस 5 into 3 plus 6 into 5, second row first column। now second row second column 4 into 2 plus 5 into 4 plus 6 into 6, one into 1 plus 21 plus 10, 2 plus 28 plus 12, 4 plus 15 plus 30, 8, 20, 36। Now 31 plus 1 it is 32, 30, 42. Now it is 45 plus 49, 4. Now 8, 28, 28 plus 6, 34, 34 plus 64. This is our answer. ये हमारा ए बी है और ये हमारा बी ए है। ए बी जब मालूम कर रहे थे तो ए पहले लिखिए और बी बाद में लिखिए। जब बी ए मालूम कर रहे थे तो बी पहले लिखिए और ए बाद में लिखिए। वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। If the question comes to find a, b and b, such questions will be on 3 marks. Very important bit of this chapter. Hope everybody have understood this matrix multiplication, how to multiply the two matrices. Like that, many examples are there. We will see in exercise also. Hope everybody have understood. Thank you everybody.